ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਹਾਰਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, असी अगे साडा कोई फ्यूचर नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पीरियड ऐसा हुआ कि जिसमें 2-3 दिन लगातार पढ़ाई नहीं की या हफ्ते भर पढ़ाई से दूर हो गए उस चीज़ में, ऐसा भी कोई टाइम आया? तो पबजी नहीं खेलना, मुझे दोस्तों के साथ अभी बात नहीं करनी, मुझे और किसी चीज़ पे सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना, मुझे भी पढ़ाई करनी है। मैं अच्छा, आपने ASO इन CSS लिया जबकि आपकी रैंक भी बहुत अच्छी थी, आपको इनकम टैक्स भी मिल जाता और जहाँ आप चाहते, तो आपने CSS क्यों लिया? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੱਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਰੈਂਕ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 375 ਰੈਂਕ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ASO ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਇਨ CSS ਇਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। तो आओ साढ़े नाल गल करते हैं। आइए, स्वागत आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों। इस इंटरव्यू सेशन में बहुत मजा आएगा एक ऐसे बच्चे से बात करने में जिसकी हाइट है 6 फीट 4 इंच, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना शहीद भगत सिंह जैसा, मतलब जबरदस्त चेहरा, उतनी ही तेज, उतना ही ओज चेहरे पे। ऐसे बच्चे से बात करते हैं, इस बच्चे की जर्नी जानते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सरदार लड़के हैं जो बिजनेस करना पसंद करते हैं, खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं, विदेश जाना पसंद करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो जानते हैं कि जस्सी का ऐसा कौन सा रुझान आया कि उसे सरकारी नौकरी पसंद आई। तो जस्सी भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ। थैंक यू वेरी मच सर। अब तुसी बताओ कि सारे जो पंजाबी लड़के होते हैं वो खेतीबाड़ी में, पहलवानी में, खेल में है, बिजनेस में है, विदेश जाने में है, सरकारी नौकरी का चस्का कैसे? सर एक्चुअली मैं सर बचपन से ही बास्केटबॉल वगैरह खेलता रहा हूँ। अच्छा। तो मतलब गेम में तो सर रुझान है ही है। और सर गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ऐसे रुझान आया सर कि मैं एक दिन सर, हम लोग मतलब जब कोविड का टाइम चल रहा था, मेरी शायद ग्रेजुएशन सेकंड ईयर थी, तब सर हम लोग सर सब मेरे कज़न भैया और हम सब पबजी वगैरह खेलते रहते थे सर पूरा दिन। और कुछ तो काम तू नहीं पंजाबी में बोल, मुझे पंजाबी समझ में बहुत अच्छी आती है। हाँ जी। तो सर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਰ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ SSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ SSC ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਥ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। अरे वाह, ਸਰ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਰ पंजाबी च गल्ला ਮੈਂ करेंगे। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉਸ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅੱਜ, 1-to-1 ਫੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ, तो ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। तो ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੰਧੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਾਨਦਾਰ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰ, ਸੈੱਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸੋਚ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ SSC में ਥੋੜਾ ਮੈਂ SSC ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ PCM ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। PCM ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ MSc ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ? ਸਰ ਉਹ RBS ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਗਰਾ ਤੋਂ। ਆਗਰਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ MSc ਵਗੈरह ਕੀਤੀ। ਤੋਂ MSc ਦੇ PCM ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਂ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, PhD ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਬਣਾਵਾਂ।
नहीं ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੇਰਾ ਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕੌਣ ਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਐਸਸੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਓਕੇ। तो उन्होंने भी थोड़ा देखते देखते समझ गए कि हाँ मतलब लाइन अच्छी है तो क्लीयर भी है, ताई तो सर सोच लिया सी कि एसएससी मतलब मैं कर सकदा है। टाइम कौन से साल दी हैगी? सर ए मेरा है सर ग्रेजुएशन आई थिंक लास्ट ईयर। अच्छा, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर इन 2023। 2023। हाँ जी। और आपने बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करनी कब स्टार्ट की एसएससी की, अब मुझे सरकारी नौकरी पे जाना है? हाँ जी सर, तां ते मैं सर एक साल ते मैं सिर्फ बैचेज और ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਓਕੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਮੇਨਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਤਿਆਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ मतलब ਉਹ ਸਰ मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि टाइम बहुत बलवान है सर। बिल्कुल, जिसने टाइम को संभाला ना तो वो टाइम आपको संभाल लेगा। और वही है सर, बस टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सोशल मीडिया की तरफ ध्यान देना, सोशल मीडिया डिलीट करना। और दोस्ती कभी जगह बहुत साथ भी देती है, पर कभी कभार जैसे मेरे दोस्त बहुत हैं सर, तो वो सर मैनू बुलाण आ जाते सी घरे कि आ जा उत्थे चलीए किते चलीए, ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਗਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਗਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, मतलब मैं बिल्कुल। तो ਤੁਸੀਂ जब पबजी खेलते ਸੀਗੇ तो कितना टाइम देते सर उस टाइम ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਸਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ मतलब 6-7 ਘੰਟੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। पबजी खेल रहे? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ मतलब कभी किसी नाल खेलना, कभी किसी नाल खेलना। तो उससे जो बाहर निकले उस दौर से, जो पबजी वाले दौर से, जो आप कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है अपनी चीजों से, उस दौर से बाहर निकले कैसे? मतलब अपने माइंड को मजबूत कैसे किया? जैसे अगर मैं ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। तो ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਹਾਰਡ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਡ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਣੇ मतलब ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਹਾਰਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ अच्छा फ्यूचर बनाइए। पिक्चर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि यह हलक उठती है, हम हरियाणवी में कहते हैं कि हलक उठती है। जैसे पबजी खेल रहे हो आप, सोशल मीडिया पे रील देख रहे हो तो थोड़ी देर बंद कर दोगे, फिर हलक उठती है। हाँ जी। कि मतलब इच्छा जागृत होती है दोबारा से उसको खेलने की। हाँ जी। तो वो जब पबजी 6-7 घंटे बिताने के बाद और फिर आदमी स्ट्रिक्ट होकर उससे बाहर निकल रहा है, तो बार बार जैसे दारू पीने वाला होता है, वो छोड़ देता है तो उसके बाद वो दोबारा इच्छा पैदा होती है। मैं उसे पंजाबी में समझा नहीं पा रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको। नशा है सर, बिल्कुल एडिक्शन है। हाँ जी। तो वो मतलब स्ट्राइक करता था बार बार आके दोबारा से उस चीज को। बिल्कुल सर, कोई भी अगर आपको एडिक्शन है, कोई भी लत है, तो वो आपको परेशान करेगी, पर उसको ही तो मना करना है सर। यही तो आग का दरिया कूद के जाना है सर, इसी को तो सर पार करना है। यही एक आपका टेस्ट है, यही आपको पार करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मैं पबजी नहीं खेलना, मुझे दोस्तों के साथ अभी बात नहीं करनी, मुझे और किसी चीज़ पे सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना, मुझे भी पढ़ाई करनी है। मैं उसके बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मेरे भैयाओं ने भी हमेशा यही सिखाया कि अभी कुछ टाइम वेस्ट मत करो, सब सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ आएगा। घूमने फिरने को मॉल्स कभी बंद नहीं होंगे, पार्टी कभी जेन्युइन बात है, वो हमेशा चलती रहेंगी, पर आपको वो आप सिलेक्शन ले लो, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। तो जैसे कितने घंटे पढ़ते थे लास्ट के महीनों में? सर एक्चुअली सर मैं मेरा सर हर वीक मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली मेरा ना सर स्केड्यूल चेंज होता रहता था। अच्छा, तो मतलब मैं जैसे इस बात को समझाना, शेड्यूल चेंज होने के में क्या क्या करते, कैसे होता था? सर एक्चुअली जो लास्ट का मेरा मंथ था, या लास्ट के 2 मंथ थे मेन से पहले, वो मेरा सर ऐसा था कि मैं सुबह उठ के सर सबसे पहले 9 बजे के आसपास सर सबसे पहले तो भगवान को ध्यान करना है कि यहाँ तक पहुँचा दिया, आगे भी पहुँचा दिया। तो सर उसके बाद सर मैं लगभग 1 घंटा वहाँ लगाता था फ्रेश होने के बाद।
तो उसके बाद सर फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता था नाश्ता वगैरह करके। फिर वहाँ सर सबसे पहले जाके मॉक में देता था सर। मैंने कई बच्चों को देखा, वो ना सर लास्ट में मॉक देते थे, मतलब एट द एंड ऑफ डे। तो सर मेरे भैया ने सजेस्ट किया कि जब आपका माइंड फ्रेश हो, सुबह सुबह माइंड एकदम फ्रेश होता है, और टाइमिंग भी लगभग वही आसपास बैठती है आपकी जो मेंस का मॉक है। जेन्युइन बात है। तो तभी सर मैं फिर वहाँ सर मॉक देता था। मतलब वो 4 घंटे मैंने सर फिक्स कर रखे थे, पौने 2 घंटे का मॉक, ओके, 45 मिनट्स का उसका एनालिसिस। उसके बाद सर आधे घंटे का, 1 घंटे का सर कंप्यूटर क्योंकि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद सर आधे घंटे की लगभग टाइपिंग। वो सर 4 घंटे मैंने फिक्स कर रखे थे। उसके बाद सर फिर मैं वोकैब पढ़ता था, मतलब इंग्लिश को थोड़ा टाइम दे दिया। फिर मैथ तो सर आखिरी के टाइम पे मेरी काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो। तो सर वो मैं काफ़ी आखिरी के टाइम पे, आखिरी 1-2 महीने में बहुत कम कर दी थी मैंने सर। 1 घंटा ही देता था मैं मैथ को। और मैथ में स्कोर क्या था अभी? 90 आउट ऑफ 90। 90 आउट, ब्रिलियंट। अच्छा, फिर सर मैथ में सर एक्चुअली मैं सिर्फ आखिरी में मैंने सर एक बुक बना रखी थी, तो उसमें सर पूरे अर्थमेटिक से लेके एडवांस के सारे सिर्फ फॉर्मूले वगैरह से कुछ नहीं करता था। आधे घंटे सर उन्हें ही खोल के बस रिवाइज करता रहना। कोई एक अगर मुझे उसमें से ही क्वेश्चन दिख गया कि हाँ इस टाइम वो क्वेश्चन बना था, बस उसको एक बार माइंड में ही घूमता रहता था। तो बस वही थोड़ा सा माइंड घूम गया बस। उसके बाद सर मैथ वगैरह रिवाइज कर ली। इंग्लिश के बाद फिर मतलब थोड़ा साथ साथ ही चलता रहता था। फिर सर फिर मैं टाइम देता था जीएस को सर। शाम में एक बार घर आता था, एक बार फ्रेश होके चाय वगैरह मतलब नाश्ता वगैरह करके। फिर सर मैं पूरा रात तक 5:30 से वापस जाता था, रात के 9:30 10 बजे तक 4.5 घंटे पूरे जीएस को देता था। मतलब जीएस की एक आध क्लास ले ली, फिर उसके बाद नोट्स रिवाइज कर लिए पूरे, एक आध सेक्शनल मॉक दे लिया। तो सर वैसा वो टाइम चलता था जीएस के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना कि जैसे आप जिस मतलब पर्सनैलिटी के आदमी हैं और खुश मिजाज आदमी हैं, तो बीच में ऐसे भी मोमेंट आते होंगे कि यार दोस्त या किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन बार बार भटकाते होंगे उस चीजों से। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पीरियड ऐसा हुआ कि जिसमें 2-3 दिन लगातार पढ़ाई नहीं की, या हफ्ते भर पढ़ाई से दूर हो गए उस चीज में? ऐसा भी कोई टाइम आया? सर 2-3 दिन तो नहीं, पर एक आध दिन हो जाता था। पर उसका गिल्ट बहुत अच्छा काम करता था। अच्छा, उसका गिल्ट होता था। उसका गिल्ट ही मुझे अगले हफ्ते बहुत अच्छी पढ़ाई की, यार ये एक दिन छोड़ा है, इसको पूरा कवर करना है। और सर ये फील्ड जो है ना, जो मैं सब अब जो बच्चे आ रहे हैं या जो बच्चे इस फील्ड में हैं, उन्हें सर ये फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा। इसे कंपटीशन कहते हैं। तो कंपटीशन मतलब हमें एक स्कोर अचीव नहीं करना, हमें दूसरों से ज़्यादा पढ़ना है। कि अगर हम आज अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या घूम रहे हैं, आज हमने अपना एक दिन वेस्ट कर दिया दोस्ती यारी में, कुछ भी, कुछ खाने पीने चले गए, फैमिली टाइम जो भी है, पर कोई और बच्चा पढ़ रहा है। सच बात है, कोई और बच्चा आपसे आगे निकल रहा है, तो वो आपको बहुत, और आपको लड़ना उसी बच्चे से, लड़ना है, एक ना एक दिन बैठना उसी के साथ है। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है सर, वो अभी 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो मैंने उससे एक दिन बात करी कि somebody is scoring 130, तो वो कह रहा है कि वो तैयारी भी तो बहुत पहले से कर रहा है। मैंने कहा उससे कोई मतलब नहीं है। 25 में वो आपके साथ बैठेगा, जेन्युइन बात है। आपको उसको कैसे पीछे छोड़ोगे वो सोचो। मैंने सर हमेशा जब भी मैंने मतलब 24 में जब मैंने तैयारी करी ना, मैंने पेरेंट्स को कह रखा था कि मैं रैंक स्कोर करूंगा। और यार 375 रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? बहुत अच्छी रैंक आपकी आई है। और इससे पीछे वाला सीजीएल आपका क्रैक भी नहीं हुआ? नहीं सर, मेंस क्रैक नहीं हुआ था, प्री क्रैक। हाँ, मतलब सीजीएल मेंस रह गया था। और उसके बाद फिर जो अटेम्प्ट आया है ये वाला 2024 का, इसमें 375 रैंक लेके आना पूरे भारत में, मतलब बड़ा बड़ा है। अच्छा, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 375th ਰੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ, तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਰ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 375 ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਭ ਆਪੇ ਹੀ 375 ਰੈਂਕ ਸਰ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਵਾਤੀ ਸਰ ਆਪੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ
ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ तो ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ बड़ा हो गया। ਹਾਂਜੀ 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 तो ਤੁਸੀਂ तो बहुत जल्दी आ गए होंगे, आपकी तो हाइट ही 6 फीट 4 है। ਹਾਂਜੀ तो फादर साहब की तरफ से कैसा मोटिवेशन मिलता था? सर मतलब वो धमकाते थे, प्यार करते थे, या नॉर्मल मोटिवेट करते थे? फादर साहब ने तो मतलब मैं सर बयान भी नहीं कर सकता सर, मतलब पर उन्होंने मतलब बचपन से ही मुझे मतलब जब मैं सोते हुए भी उन्होंने उतने प्यार से उठाना ना सर, मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकता है, मतलब मैं आगे कैसे कैर करूँगा, मतलब बहुत ही सर हेल्प करी सर उन्होंने। ठीक है सर, डांट भी बहुत ज़रूरी होती है, जरूरी होते एक वक्त पे। कुछ बच्चे अगर अगर डांटोगे नहीं किसी बच्चे ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜਾਕੂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਆਣਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। और वैसे भी जस्सी ਦੀ ਹਾਈਟ 6 ਫੀਟ 4 ਇੰਚ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਐਂਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਤੇ ਸਰ, ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਡਾਂਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਡਾਂਟਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ। एनालिसिस की कैसे करते थे एनालिसिस? ਸਰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਮੈਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਸਐਸਸੀ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਪੁੱਛੀਏ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ A1 B2 ਉਹ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਗੋ ਥਰੂ ਉਹ ਬੇਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। जैसे मान लो, हाँ जी जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन था, हाँ जी वो आपका गलत हो गया, हाँ जी, तो उस पे आप फिर क्या विचार करते थे कि मतलब क्या एनालिसिस क्या करते थे उसमें? जैसे सर लास्ट ईयर तक ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, अच्छा, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾइंड 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ उतना ही सर एनालिसिस वगैरह वो सब चीज़। और वैसे भी एक कहावत है कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है उसमें आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम भी जब पढ़ाते हैं तो बहुत बार सवाल आधा पढ़ते हैं और फिर सीधे आंसर देने में चले जाते हैं, जबकि लास्ट में जो हम निकाल रहे हैं पूछा कुछ और ही होता है। अच्छा, तो फिर मुझे बताना कि जीएस का जब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते थे तो जीएस में तो बहुत सारे ऐसे सवाल मिलते होंगे, खासकर जो पहली बार देखे होंगे उस समय, तो उनका फिर कैसे क्या प्लानिंग करते थे उनके? ਸਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜੀਐਸ ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਐਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਤੇ? नहीं सर, मैं सर पढ़ता ही सीगा सर, रटिया तो मैं बार मतलब मैं सर आपने भी सर हमेशा मुझे ये सिखाया कि टेबल कभी लर्न नहीं करनी, टेबल स्क्वायर क्यूब कभी लर्न नहीं करने, मैं सर बार बार चीज़ां पढ़दा, टेबल पढ़दा, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 14 9 ਜਾਂ 1 2 6 ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੱਸੀ ਦੀ, तो वो 22 ईयर्स दी हैगी, है ना। 22 साल में कोई बच्चा लाख रुपए सरकारी नौकरी तनख्वाह ले और रैंक भी 375 लेके आए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन जब ये इंटरव्यू आप सबके सामने पब्लिश हो रहा है तब तक इसने किसी को इसके बारे में बताया नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी,
केवल और केवल इसकी फैमिली को पता है और क्लोज लोगों को पता है। तो मतलब आप सोचो कि एक छोटी सी उम्र का बच्चा, 20-22 साल का बच्चा, क्योंकि लगभग 20 साल की उम्र में इसने सीरियस होना शुरू किया होगा पढ़ाई के लिए, है ना, और 22 साल में इसका वो जो मेहनत थी उसने आज कुछ गुल खिलाए, और इतने जबरदस्त गुल खिलाए कि 375 रैंक लेके आया। तो ये बात तो तय है कि इसने एक बहुत छोटी उम्र में अपने आप को मैच्योर कर लिया, और उस मैच्योर करने में कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, इनके भाई का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, जिन्होंने इस चीज के लिए इनको मोटिवेट किया। लेकिन मैं जैसे ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जब कोई भी बच्चा तैयारी करने जाता है, खासकर आज की बात करें तो जैसा आपने कहा कि मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है ना, और मैथ में आ भी जाते हैं, अगर आप थोड़ी ठीक से मेहनत करें तो 90 आउट ऑफ 90 आ जाते हैं। तो सिलेक्शन जो है ना वो डिसाइड करता है कहीं ना कहीं जीएस पे जाके, बिल्कुल, है ना, और आपकी रैंक ही बहुत अच्छी आ रही 375, तो आपको तो इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि आप रीजनिंग और मैथ में तो आप 100% स्कोर की तरफ जाते हैं, और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो जीएस में आज के सिनेरियो में आपको क्या लगता है, खासकर अभी 2024 के मेंस के पेपर को देख के, कि बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए, किस चीज पे टाइम देना चाहिए, और कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए? सर ये तो सर क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए तो सर टीचर ही बताते हैं। टीचर इसीलिए सर टीचर्स की जरूरत होती है। अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो आप सब कुछ पढ़ते रहोगे। सब कुछ पढ़ते रहोगे। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਰ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਐਸਸੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ ਕਿ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥ ਚ 27 ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ 27 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 100% ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਐਸ ਵੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਜੀਐਸ ਵੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥ ਔਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀਐਸ ਵੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਥ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ। ਸਰ ਮੇਰਾ 90% ਸਕੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥ ਜੀਐਸ ਮੈਥ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਵਾਸਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਂਕ 1 ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੈਂਕ 1 ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੋਰ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ 100 ਰੈਂਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੈਂਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਆਣ ਦਿੱਤੀ, पर वो जरूरी भी है सर, जरूरी क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती है और बार बार वो फेल्योर का रिस्क भी रहता है, बहुत सारी और चीजें आती है मन में, क्योंकि जब एक बच्चा जवान होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सपना जो होता है वो भविष्य को दिखता है, हर चीज भविष्य में जाता है। अच्छा, आपके मैथ में 90 ऑफ 90 है, रीजनिंग में 90 है सर, रीजनिंग में भी 90 है, और इंग्लिश में 127। तो यानी सिर्फ जीएस की वजह से ही रह गया है 375, नहीं तो आप तो टॉप 10 में बैठे थे सर। जो मैं डिजर्व करता था ना सर, भगवान ने मुझे वही दिया है। अच्छा, तो आपको कौन सी ऐसी चीज लग रही है जीएस में जो कमी रह गई, जो आपका बेस ठीक नहीं था, या कुछ ना कुछ जो आपको लगता है कि जीएस में मैं इस वजह से हिट नहीं कर पाया? देखो, मैथ में 100% स्कोर कर सकते थे, कर दिया। रीजनिंग में 100% स्कोर कर सकते थे, कर दिया। इंग्लिश में अराउंड 95% स्कोर करना था, कर दिया। एक ही जगह आके अटके हैं, उसी वजह से 375 है, नहीं तो टॉप 10 रैंक भी होगी। तो कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है जो वहां कमी रह गई? सर जीएस में मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस या रीसेंट क्वेश्चंस, मैंने मतलब रीसेंट क्वेश्चंस तो देखे थे पर वो मेरे माइंड में बहुत कम थे। अच्छा, मतलब वो मुझे थोड़ा ठीक है, मैं इम्प्रूव कर सकता था, बट ऐसी बात नहीं है सर, मैं अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं खूब सेटिस्फाई हूँ। होना भी चाहिए। स्कोर है सर, भगवान ने दिया है। नहीं, बहुत अच्छा स्कोर है। और मैं आज अपनी एक छोटी सी रील बना रहा था, उसमें मैं एक कहानी बता रहा था बच्चों को कि एक बार एक कौवा था बैठा हुआ, और वो कौवा बैठ के एक पेड़ पे रोने लग रहा था। तो उस पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे, तो जब वो कौवा रोने लग रहा था तो उसके आंसू उस महात्मा के ऊपर आके गिरे।
तो उस महात्मा ने उस कौवे से पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है? तो उसने कहा कि मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझसे कोई प्यार भी नहीं करता, मुझे हर कोई अपने से दूर भी भगाता है, मुझे कोई चाहता भी नहीं है, तो मेरा जीवन जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तेरा दुख दूर करते हैं, लेकिन तू ये बता बनना क्या चाहता है? बोला मैं तो हंस बनना चाहता हूँ, हंस जो बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तू जाके एक बार हंस से पूछ क्या कि वो खुश है कि नहीं है। तो कौवा चला गया हंस के पास। जब वो हंस के पास गया और उसने पूछा, तो हंस ने कहा कि भाई मैं तो दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रंग एक ही रंग है मेरे पास, और इस रंग को हर कोई पहचान लेता है, तो मुझ पर अटैक कर देता है, तो मैं उतना ऊंचा नहीं उड़ सकता जितना ऊंचा दूसरे पक्षी उड़ सकते हैं, तो मुझे तो बहुत मजा नहीं है जिंदगी में। तो फिर बोला कौन मजे में? तो उसने कहा तोता मजे में होगा, क्योंकि उसको उसके रंग भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और दुनिया उससे प्यार करती है। फिर वो तोते के पास गया। तो तोते के पास जब वो गया, तो तोते ने कहा कि यार मैं तो बहुत बुरा दुखी हूं, मुझे दुनिया बहुत प्यार करती है, लेकिन इसी प्यार के चक्कर में मुझे कैद करके रख लेती पिंजरे में। रखती है। तो फिर उसने कहा कि यार फिर कौन खुश है? तो उसने कहा जी मोर खुश होगा, क्योंकि मोर का नाच देखने में दुनिया देखने आती है और उसे बहुत प्यार करती है। फिर वो मोर के पास गया। जब मोर के पास गया, तो मोर ने कहा भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, लोग तो मुझे मेरा नाच देखते हैं, लेकिन मेरा जैसे ही नाच खत्म होता है तो मेरे पंख तोड़ देते हैं, तो मैं तो बहुत दुखी हूं। तो बोले तू क्या बनना चाहता है? बोले मैं तो कौवा बनना चाहता हूं, जिसे कोई प्यार ना करे और वो आजादी से जहां चाहे वहां घूम जाए, यानी आजादी से प्यार करता हूं। तो फिर वो कौवा आया। तो उस महात्मा ने कहा कि कई बार हम बाहर से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जबकि सच बात यह है कि आपके अंदर जो चीज है ना, उससे जब आप कंपेयर करोगे, अपनी चीज को देखोगे, तो आपको खुशी मिलेगी। और अगर रैंक 2 आ जाए तब भी आदमी दुखी रहता है कि मेरी रैंक 1 नहीं आई, है ना। और यहाँ रैंक 375, जिसके लिए लाखों बच्चे नहीं करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। करोड़ों बच्चों का सपना होगा आज के समय में, इस तैयारी के युग में लगभग 4.5 करोड़ बच्चा ऐसा जो तैयारी करता है ना। और बहुत सारे बच्चे तो एसएससी सीजीएल की तरह मूव भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि लेवल डिफरेंट है, और वहां 375 रैंक लेके आना बड़ी चीज है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि हम अपने अचीवमेंट से खुश हैं, हमने जो मिला, हमारी मेहनत का हिस्सा मिला, हम उससे खुश हैं। अब मुझे ये बता कि इस पूरे टेन्योर में बहुत बार जो ऐसा होता है कि आदमी को फेल होने का डर रहता है। बहुत बार जैसा आपने भी कहा कि मुझे लगता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और मैं कुछ और कर लूं या इस एनर्जी को कहीं और वेस्ट मतलब यूज कर लें। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? और जो बहुत सारे बच्चे इसी उलझन में फंसे रहते हैं सारे दिन। कई बच्चे, जैसे आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही कि आपने 1.5-2 साल के अंदर उस जर्नी को कंप्लीट कर लिया, सिलेक्शन ले लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी 3-3 साल जर्नी चली जाती है। एक इंटरव्यू आपसे पहले हो रहा था, उस बच्चे ने 8 साल तक कोई तैयारी नहीं की, किताब नहीं पढ़ी। फिर तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहली बात तो सर मेरा मोटिवेशन तो यही था सर कि मैं सर सिर्फ एक ही चीज़ से डरता था। मुझे अपने कुछ नहीं था, मुझे फेलियर का कोई डर कुछ खास नहीं था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि जो सपने मेरे मॉम डैड ने मैंने उन्हें दिखाए हैं कि मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो टूटेगा ना तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दुख तो सर वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन था। और जो आजकल के बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक बार सोचना चाहिए दोबारा। मतलब मेरे हिसाब से इस कंपटीशन के एरिया में सिर्फ 3 से 4 साल, मतलब मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ ये मेरी राय है कि 3 से 4 साल से ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो आप थोड़ा अपना लाइफ कुछ और भी आप अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर होता तो मैं कुछ शायद मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनता, मैं अभी भी बन सकता हूँ, मैं ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पैशन फॉलो करता अपना, कुछ और सीखता, किताबें पढ़ता। बट ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एसएससी ही जीवन है। ये आप कभी मत सोचिए कि एसएससी नहीं हुआ तो क्या होगा। होगा? ये सर कंपटीशन तो सर एक दलदल है सर। मैं हमेशा जब भी लाइब्रेरी में बैठा होता था तो मैं यही बात करता था, कंपटीशन दलदल है, इसको आपको या तो जल्दी जल्दी पार करना है, नहीं तो इससे निकलो। क्योंकि सर आपको हर एक साल ऐसा लगेगा कि इस साल बस मेरा ये स्कोर बन गया, बस मेरा अगले साल मेरा हो ही जाएगा। ये दलदल है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस दलदल को या तो जल्दी से पार करो, एक बार रह गए तो फिर फंस ही गए, फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उस दलदल से बाहर निकलने के। अच्छा, आपने एएसओ सीएसएस लिया, जबकि आपकी रैंक भी बहुत अच्छी थी, आपको इनकम टैक्स भी मिल जाता और जहां आप चाहते, तो आपने सीएसएस क्यों लिया? सर
मेरे हिसाब से मेरे लिए हम्म पावर और मतलब पावर भी है इस जॉब में अच्छी, हम्म पर रौला वो सब इतना मायने नहीं रखता। स्टेबल जॉब हम्म और शांति की ज़िंदगी, और सर पंजाब और आगरा के बीच में है, तो मैं बिल्कुल, पंजाब भी जा पंजाब भी सकते जा हैं, सकता हूँ, आगरा भी। आगरा अपने घर भी जा सकता हूँ, स्टेबल है, दिल्ली में रहना है। हम्म बस सर इसलिए मैंने सर, क्योंकि मेरे ब्रदर हैं सर, वो बैंक में हैं, तो वो काफ़ी ट्रांसफ़र के चक्कर में थे और परेशान होते हैं। परेशान थे सर। तो उन्होंने मुझे सर सजेस्ट किया कि ASO CSS, मतलब वह एक जगह रुक के जॉब करो, आगे फैमिली वगैरह भी होती है, तो सर इजी हो वो सब। जाता है। हाँ जी सर। अच्छा, एक चीज मुझे पर्सनल बताना जसी भाई, कि पंजाब के बच्चे क्यों नहीं आते एसएससी में? यस, हम नहीं पहुंच पा रहे, या हमसे नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते हैं? मतलब मुझे जैसे आप पहले बच्चे मुझे मिले इस साल मुझे, जो हाँ जी। पंजाब का बच्चा है और जिसका सिलेक्शन हुआ है, हाँ जी। तो कहाँ कमी रह गई हमारी तरफ से, या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ? कौन सी ऐसी चीज है जो हमसे नहीं हो पा रहा वो काम? हम्म, सर पंजाब में सर एक्चुअली सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा है? हाँ जी सर। हाँ, तो वो मतलब मैं तो सर उस साइड ज़्यादा रहा नहीं पंजाब। आप आगरा शिफ्ट हाँ हो जी सर, गए। मैं आगरा में ही था। हम्म तो मुझे सर इतना मतलब पंजाब के बच्चों में क्या चल रहा है हाँ, और वहाँ की कोचिंग लाइंस कैसी हैं सर, मुझे इसके बारे में मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ क्या है। मतलब वहाँ सर ज़्यादातर लोग या तो भगवान से ज़्यादा जुड़े जुड़े हुए हुए हैं। हैं, या सर कनाडा वगैरह मतलब बाहर कनाडा, ज़्यादा। कनाडा, हाँ कनाडा। जी सर। अच्छा, आपके यारी रिश्तेदारी में कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं? सर मेरे एक ब्रदर अच्छा। हैं, ही इज़ इन कैनरा बैंक, दिल्ली में पोस्टेड है, अच्छा। तो वही है सर, और बाकी गवर्नमेंट में तो और कोई नहीं। ओके नहीं। और जो यार दोस्तों का ग्रुप है जिनके साथ बास्केटबॉल खेलते थे, वो अभी क्या कर रहे हैं? सर वो अभी बास्केटबॉल ही खेलते हैं, कई कई अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। मैं भी सर स्टेट लेवल खेला हूँ पाँच अच्छा, छः बार, और बढ़िया। यूनिवर्सिटी लेवल भी खेला हूँ सर मैं। हम्म और मेरे दोस्त हैं सर, वो मतलब नेशनल लेवल भी खेले हुए हैं, हम्म बेंगलोर में भी हैं एक हम्म दोस्त, तो सर वो सब अच्छा बास्केटबॉल खेल रहे हैं। हम्म तो बाकी दोस्त हैं वो कई बिजनेस लाइन में हैं, कई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम्म। या एक और दोस्त हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं, तो आप कुछ कहना चाहें बच्चों को, जो आपकी पूरी जर्नी रही, उससे आप कुछ भी कहना चाहें तो बताओ। एक्चुअली सर मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक पंजाबी जी करना है, हम्म एक मुंडे ने क्या सीगा कि ऑडियंस के सामने क्या सीगा कि आप अपना हाथ ऊपर करो, हम्म तो सबने हाथ ऊपर करा। हम्म तो उसने कहा कि अब सबने इतना हाथ ऊपर करा, इतना पंजाबी पंजाबी। सारे ने इतना हाथ ऊपर किया, हाँ तो देन उन्हें कहा कि हुण तुसीं होर ऊपर करो, हाथ हाँ पूरा ऊपर करो। हाँ साਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, हाँ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ हाँ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अरे वाह। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, 100% ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। धोखा था आगे। बड़ी अच्छी चीज है यार। देखो यार, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपके लिए एक किस्म से ऐसा समझिए कि पुश हैं। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बीच में आपको उठाती हैं। जैसे इस बच्चे ने बड़ी प्यारी एक बात बताई जस्सी ने, कि आपसे बोला जाए हाथ उठाओ तो आप इतना उठाते हो, फिर इतना उठाते हो, जब बोला पूरा हाथ उठाओ तो इतना, तो उसने पूछा कि पहली बार में आपने पूरा हाथ क्यों नहीं उठाया? मतलब आप फर्स्ट टाइम में ही अपना पूरा 100% क्यों नहीं दे रहे, बजाय के थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, उससे टाइम भी बीतता है। और जैसी कुछ बताया, तेरी बातों में मजा बड़ा आ रहा है मुझे। सर कई लोग, एक लिखा होता है कि हम्म? वी आर डेस्टाइंड, हमें हमें भगवान ने बना के भेजा है, हम इस काम के लिए इस बना काम के लिए बने हैं, है। पंजाबी च गल। इस ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ। हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ हम्म, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हाँ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम्म, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ हम्म। ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। आए मेरी जान, कमाल, कमाल। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ। और ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਹੈ ਜੱਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ अरदास ए उम्मीद हैगी आगे बढ़ने दी। बिल्कुल। तो अरदास बहुत बड़ी चीज है। और देखो, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना,
उस समय आपको एक ऐसी साइलेंट शक्ति की जरूरत होती है बिल्कुल। जो आपको पीछे से मोटिवेट करती रहे और आगे बढ़ाती रहे। तो भगवान में ध्यान देना, अरदास करना, अपने अपने धर्म पे जिसमें भी आप हैं उसमें विश्वास करना और आस्था से जोड़ना, वो सर बड़ी चीज है। ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰੇਕਲ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ ਮੇਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿਲ ਮੋਡ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਲ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿਲ ਮੋਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਨ ਮੈਥ ਵਿੱਚ 90 ਆਊਟ ਆਫ 90 ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਆਫ 90 ਹੈ, तो सारे ही ਕੀਤੇ ਸੀ। और कुछ पाजी? सर ऊपर वाले ने करा ले सारे। है ही बड़प्पन है। और पाजी? सर एक मैं तो ये गल खुद लिखी है हाँ कि हर एक जगह लिखे होता है रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। हाँ तो मैं लिखी है कि रेड बुल डजंट गिव्स यू विंग्स, हाँ, हार्ड वर्क डज। हार्ड वर्क टच। आपको हार्ड वर्क करना है, टाइम की मेहनत, टाइम की आपको महानता समझनी है। टाइम अगर वेस्ट करोगे तो दिक्कत होगी। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰੈਡ ਬੁਲ ਵਿੰਗਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सर रेड बुल हर एक जगह लिखे होता है कि रेड बुल सानू पंख लांदी है, पंख लांदी है, पर मैं लिखा है कि रेड बुल पंख नहीं लांदी, हार्ड वर्क पंख लांदे ने। हार्ड वर्क। और सर चूज योर हार्ड तो करना ही है सर। चूज योर हार्ड, नाइस पॉइंट। सर मतलब बहुत लोग सर परेशान है कि मैं मोटा हूँ, मैं मोटा है, मैं परेशान है। वो भी हार्ड है, हार्ड है। मोटा रहना भी हार्ड है, जिम जाना भी हार्ड है, गरीब रहना भी हार्ड है, अमीर रहना भी हार्ड है, डिसिप्लिन रहना भी हार्ड है। हार्ड हैगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੇਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ 6-6 ਘੰਟੇ ਪਬਜੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ आज 375 रैंक पे लेके बैठा हुआ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, गलतियां सिखाती ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟ ਹੈ, ਸ਼ਾयद श्री राम जी ने क्या है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। कि कृष्ण भगवान जी, हाँ जी कृष्ण सॉरी, जी। कृष्ण जी ने कहा है तो कर्म कर फल की चिंता मत कर। सर मैं भी बहुत चिंता करता ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ कर्म कर, बस ऊपर वाला आपे देख लेगा कितने बिठाना है, की करना है। सर ऊपर वाले ने हमारे लिए हमसे अच्छा ही सोचा हुआ है। सच बात है। और देखो कितनी खूबसूरत चीज है कि इस समय जब कंपटीशन होता है तो बच्चे को ना पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब वो दौर चला गया जब हमारे वाला टाइम था, जब हमारे पेरेंट्स मतलब सपोर्ट का तो मतलब ही नहीं कि कभी हो जाए, वो खींचते रहते थे हर चीज़ में। लेकिन उस समय में और इस समय में बहुत फ़र्क है। उस समय इतने डिस्ट्रक्शन नहीं थे, इतना डीमोटिवेशन नहीं होता था। आज के टाइम में डीमोटिवेशन के रास्ते हज़ारों हैं, बिल्कुल, है ना। तो आज के समय में बहुत ज़रूरत है एक अच्छे पेरेंट्स होने की। हर पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनका, उसके साथ बात करे, उसको सहज करे। क्योंकि इस घड़ी में ना जब वो सीरियस तैयारी कर रहा होता है, जैसे इसने भी कहा कि मैंने यार दोस्तों को छोड़ दिया, किसी को नहीं पता था मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। तो क्या क्या सर्कल कट होता है जब आदमी 9-9, 10-10, 11-11 घंटे पढ़ रहा होता है ना, तो उसके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ उसका दिमाग, और उसका दिमाग लगातार उसको नेगेटिव एनर्जी देता है बीच बीच में। तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसके कंधे पे हाथ रख के कहे कोई नहीं बेटा, तू आगे बढ़ता रहे। और ये बेटा जो शब्द आता है ना पिता के मुंह से, तो सच में उस समय आदमी में दोबारा से एनर्जी आ जाती है और चल पड़ता है। तो थैंक यू जस्सी पाजी, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं जिंदगी भर याद रखांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ मेरे पहले छात्र हो गए जो पंजाबी हैगे और जो इतने अच्छी रैंक लेके आए हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को सैल्यूट करता हूँ, ऐसे परिवार को सैल्यूट करता हूँ, और ऐसी सोच को सैल्यूट करते हैं कि जो बहुत कम टाइम में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको जब तैयारी कर रहे हैं ना,
तो आपको एक साइलेंट पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए कोशिश करिए दिन में जितना भी समय निकाल पाएँ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप ज़रूर ऊपर वाले की अरदास करिए, भगवान का नाम लीजिए और साथ ही साथ कोशिश करिए कि अपने माँ-बाप से लगातार बात करते रहें। थोड़ी-सी कोशिश ये भी करिए कि दिन में 15, 20, 50 मिनट जितना निकले, शरीर पे भी ध्यान देना और शरीर को भी आगे बढ़ाते रहना, स्वस्थ रखना। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। नमस्कार।